repetition of your chapter. Module is with you. We'll be doing questions from there. One more you use most of the time in 8th class is multiplicative inverse. Multiplicative inverse of 1 by 2. I'm just taking an example, 1 by 2. What is the multiplicative inverse of 1 by 2? Most of the children, they make mistake in this because this is a little new for you in 8th class. Otherwise, you have done all old rules in 7th also. You did already did in 7th. Okay? When base is same, powers are added. When it is multiplication sign, powers are added. When there is division sign, you subtract the powers. Whenever there is power of a power, we multiply them. Okay, you have to look for the bracket there. If one power is inside the bracket and one power is outside the bracket, you multiply them. Then it is, if the bases are different, power is same, you multiply the numbers first and then you write the power once, only once. Please remember. Same here. If in division, up and down, numbers are different, but power is same, then you write the power only once by dividing the numbers. Thing which is, to be taken care in this chapter is, whenever you write such rules by A, B, M, N, X, Y, you understand very well. But when it comes in the question form, you have to look for the numbers carefully, whether the power is same or not. If the power is 2 here, you have to look for 2 here also. Not -2, not 3, not 1. Okay. So M and M are, they are same. That कि same variable है. But when number comes ना, वो देखने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, whether it is power 2 or -2. If it is 2 and -2, they are not same. Okay. These are old ones. You have already done in 7th also. And here also you have used any number. Excuse ma'am. Yes, beta. Yes. Ma'am. Yes. Ma'am, we can't listen your. Okay. Ma'am, we can't listen your voice. Okay, bache. Only Alessandro has a problem or other sections also? Aurobindo? What about you? Please raise your hand if you can't hear me. Ma'am, network problem. from our side. Okay. On your side? Network problem. On your side it is? Just a minute. Let me settle down. But a network problem is on your side also? Please raise your hand. बेटा आवाज आ रही है, हमारी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, वो उस क्लासरूम में आ रही है, क्लास ए सेक्शन में आ रही है, पर Alessandro. हाँ, They are saying problem is on their side also. उन्हीं की साइड है मैडम. Okay, then I will not. Ma'am, video is also paused. Okay. Yeah, I know. Your video is paused. Okay. Can you see the board, all of you? Can you see the board? Then you can see the questions which I'll be doing here. Okay. But your voice is clear. Whenever you are asking doubt or something, your voice is very clear to me. I can hear you. If video is paused, it's okay, no problem. Okay, rule number 6, have you done in 7th also? Please see it. Raise your hand if you have done this in 7th also. Rule number 6. 7 also you have done. Whenever there is negative power, you reverse it. You write the reciprocal of a number.
And eighth one is multiplicative inverse of a number. Alessandro, your voice was very, very clear to me. Any child can come forward to tell me what is the multiplicative inverse of a number. How do you represent multiplicative inverse of a It's number? reciprocal. It is the reciprocal. It means the other name of multiplicative inverse is reciprocal also. You can write down in formulas, in rule, you can write down reciprocal of 1 by 2. When you write the reciprocal or you speak out reciprocal, it is very simple. When it comes to multiplicative inverse, then it is little problem. Hai na? So you can remember it in reciprocal form. So reciprocal of 1 by 2, you know it is 2. You can keep writing, okay? Doesn't matter. I'm solving the questions here. Now it is better, Vita. Aristotle has also joined now. Are you able to hear me? Raise your hand. Or Bindu, raise your hand, bete. Are you able to hear me? All right. All right. Alessandro ka pause ho gaya hai. No problem, but they are able to hear me. Aristotle, beta. Please put on video. We have just started, don't worry. Yes. Aristotle, please see the rules I have written over there. You have already done in class also. Few of them you did in 7th also. Yes. Good. Fine. Look here now. Aristotle, if you want to note down, you can note down these rules I have written here. If there is product with same base, you add the powers. If there is division with same base, you subtract the powers. When there is a power of a power, you multiply them. You multiply the powers. Okay. And when there are different bases with same power, you multiply the numbers first. You will multiply the bases first. Right? Similarly, there is division. First you do the division, then you write the power. In rule number 4 and 5, single power will be there. Now, here there were two separate powers on A and B. Here you are writing only ones. Same here, there was a power up and down. You are writing it only once. Okay, these are your old ones. You did in 7th also. In 8th, you have read about any number raised to power 0 is 1. Then you read about any number with negative power will become a reciprocal of that. Okay. And multiplicative inverse, other name of multiplicative inverse is reciprocal. So if I ask you multiplicative inverse of 1 by 2, you will be writing as 2. If I call about same thing if I say, what is multiplicative of 2 raised to power minus 1? What would you write? You know, in 8th class, negative power will come again and again. So negative code you have to visualize in this form first of all. 1 by 2 is 2 raised to power minus 1, you know. Its multiplicative inverse will be 2. You have to use it directly. So if you'll be doing it in few questions, automatically it will come in your mind. Let us start the module now. First of all, there are assertion reasons. Chapter you have already done in class. Hope you will be understanding. If there is any problem, you can ask me. All right. So first assertion reason is when a number is multiplied by itself a finite number of times means 6 times, 7 times, 8 times, countable times, the number being multiplied is called the base number. Number being multiplied means जिसको हम multiply कर रहे हैं, that is the base. Okay.
Please say assertion reason. Read the statement. First question. Question number 1, assertion. Read it carefully. The number being multiplied is called base number. For example, in 3 raised to power 5, 3 is the base. Hope everybody knows this is true. Do you agree, all of you? Raise your hand once. By sitting only, you can tell me, yes, you know, yes, this is easy. Reason, the number of times the base is multiplied is called the exponent. जितने बार आप बेस को मल्टीप्लाई करोगे that will become the power of a number, that is the exponent of the number. Power is another name of exponent. Power is another name of exponent. Sometimes it comes in the power of 2, sometimes it comes the exponent of 2. So meaning is same. Okay. Here it is written example 3 raised to power 5. 5 is the exponent. You have learnt new names. You are growing up, going in bigger classes, learn new names. Okay. So this is B option. In assertion, we were talking about base. In reason, we are talking about exponent. Both are different things. That's why the option is B. Second question, assertion. There are so many zeros with 6. You can just count them and tell whether it is true or false. Please check it yourself. Who say false? Raise your hand. False. It is false. How many are there actually? Okay, hands down. Good. Second question. 12. Yeah, this is false. You have to count it carefully by putting dots over there, okay? पेन से आप dots भी लगा सकते हो so that कोई zero miss ना हो आपसे. Reason is exponential notation of a number helps us to express extremely large and extremely small numbers in very convenient way. This is the purpose of doing exponents and power chapter. We are writing very, very big numbers in short form so that we can read it, we can write it. Similarly, very small numbers in convenient way. For example, very small number. Suppose you have 0.00002. कितना small number है ये? Very small number. There could be more zeros. 0.000002. So you can write it conveniently. Okay, you can write it in power form. 2 into 10 raised to power 1, 2, 3, 4, 5. You have done it in standard form. In the last exercise, we can express the small numbers also in convenient way and very big number also in convenient way by the power of 10. Right? So is this true? -5. And this -5, yes. Sorry. Because we will get the Ma'am. number left to right. Okay? We will be doing this rule also when we move from left to right, when we transfer the decimal from left to right in standard form, we put the negative power. When we move from right to left, we do positive power. Okay, we'll be doing it later. Then what should be the option in second question? Is it D? D. Yes, all right. D. C. D. D. D, bache. D. So, D. Assertion is false, reason is true. It is D. Okay. Third question. Multiplicative inverse of a number is defined as a number which when multiplied by the original number, it gives the product as 1. Who say true? There is some doubt, है ना? I'm taking an example here. Multiplicative inverse, I'm writing in short form. Multiplicative inverse of 2 is 1 by 2. You know, when we do the product of 2 and 1 by 2, answer is 1. And this happens for all the numbers.
Okay, if you are taking the multiplicative inverse of, for example, this is second example, 3 by 4, it is equal to 4 by 3. Multiplicative inverse, you just tell me, you told me that multiplicative inverse means reciprocal. No need to think much. Just write the reciprocal of a number that will become multiplicative inverse of that number, right? So let us multiply them. 3 by 4 into 4 by 3 is equal to 1. This is a, definite. This is a fact which will never change. That product of a number and its multiplicative inverse is always 1. So this statement is true. Reason, you can write the example if you want. You will be using this concept in many questions. Multiplicative inverse is very prominent in this chapter. Please remember. Whether in negative power or positive power, you will be using it again and again. Okay, already आपने NCERT में भी किया हुआ है. Reason is exponential notation is also known as standard form of the number. Exponential notation is also known as standard form. आपने कितने स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वेश्चंस किए एनसीईआरटी में? यू हैव सीन कि जब भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है, ऑलवेज वी राइट पावर ऑफ 10, whether you write the smallest number, whether you write the bigger number, always power of 10 में वो एक्सप्रेस करते हो आप. Is this true? Who agree? Raise your hand. Who agree that exponential notation is also known as standard form of the number? Yes. Yes, this is true. No doubt. Right? Assertion आपका क्या था? 1 था ना इसमें प्रोडक्ट. It was 1. Sorry, 2. Reason is also true. Third question में you have both. So this is B option. Both are true. If you have any doubt, you can keep asking me side by side. Okay, come forward and ask me. Because in assertion, reason, there is a depth of the chapter. The whole concept is discussed in assertion reason questions. This is the theory of the chapter. Okay, you have to understand deeply. Fourth question is, power is defined as the whole expression of repeated multiplication that includes base and exponent. पावर, जब भी आप पावर देखोगे तो ऑफ कोर्स आपको बेस भी दिखेगा एंड पावर भी दिखेगी. पावर डजंट मीन कि आई कैन राइट ओके 2 is a power. 2 is a power. Can I express this? Is this a number, complete number? No. I have to write something over here. I have to write 5 raised to power 2, 7 raised to power 2 something. अकेली पावर तो कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करेगी ना. So power is defined as the whole expression of repeated multiplication that includes a base and exponent. For example, in 6 raised to power 4, 6 is the base and 4 is the exponent. Exponent cannot happen itself alone. Of course, base will also join it. Right? So this is true. Reason, 5 raised to 4 upon 5 raised to power 2 is equal to 5 raised to power 6. Please check it by applying the rule. Fourth question. Please check. Assertion is true. What is reason, beta? Is it false or true? excuse. Yes. मैम excuse me. Yes, beta. मैम पावर में बेस क्यों लेंगे? मैम क्योंकि मैं जब हम क्या Ma'am, why we are taking in the power base and also an exponent also? We only include when we are saying that that the 2 raised to power 2, then the power is only 2. Power is only. मैम हम बेस के साथ में लेंगे. Yeah, I'm telling you that. मैं पावर तो मैम ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट दिया हो. Yeah. Okay, now listen to me. You know, when you started this exponent chapter in 7th class, it was told to you there is a repeated multiplication. Repeated multiplication is there. Instead of writing this so many times, short form is told to you that 2 is multiplying
how many times? 1, 2, 3, 4, 5. You write it as 2 raised to power 5. That will become the exponent form of 2. Is it? Or you can say power of 2. Power form of 2. This is not alone 2. This is not alone 2. Power is expressing that 2 is multiplying these many times. 2 raised to power 12, 2 raised to power 10, 2 raised to power whatever, 100. आपकी 7th में 100 पे use हो रही थी power. This is a short form of your multiplication, repeated multiplication. तो power का आपको express क्या कर रही है? Power आपको क्या express करती है? The number is multiplying these many times. वो number क्या है? That is the base. Okay, power is telling you that particular number is multiplying these many times. So of course base will also come now. If I say you कि 5 is the power, किसकी power है? Some base is there which is telling us uh, what is multiplying 5 times. Is it okay? Is it fine? Alessandro, you asked the doubts, beta. Is it fine now? Ma'am, yes. Okay. Ma'am, yes. Okay, Vijay. This is true then. Okay. Then fourth question की option क्या होगी? First, as your assertion was true, reason is you have not told me False. it is false. Yes, you have Ma- checked. This is C. C. Okay. Please understand deeply. This chapter is not difficult. Only you have to do cautiously. छोटे छोटे questions हैं. Multiplication है, उनकी power है. Division है, multiplication है. That's it. Very small numbers are there. Let us do subjective questions. You can see few dots over there in the worksheet. Few answers are also written there. You can see here directions are given to you. Directions में few dots are there. Dots के साथ जो लिखे हुए हैं ना ये सारे numbers 32 by 81, 4 by 5 raised to 2, this that. जितने भी dots पे number लिखे हुए they are all answers actually. Okay. और उनको करना क्या है डॉट्स को जस्ट ज्वाइन करना है आपके आंसर निकलते जाएंगे डॉट्स को आपस में ज्वाइन करते जाना है दैट इज अ फन पार्ट दैट यू कैन डू एट होम आल्सो we are solving the questions okay 1 2 3 4 and so on in order we'll be doing it okay if you want to match with the dots also but concentrate on solving the questions these are all subjective questions not mcq not that proper 2 marks or 3 marks questions are here please remember few are 2 marks and few are 3 marks question these all ठीक है डॉट से जो ज्वाइन करना है वो तो आई बी टेलिंग यू लेटर डोंट बॉदर अबाउट दैट कॉन्सेंट्रेट अपना क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो हाउ टू गो फाइन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्लीज रिमेंबर अ स्मॉलेस्ट थिंग स्मॉलेस्ट अपना आपके माइंड में रहना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 बाय ए इज 1 प्लीज रिमेंबर स्मॉलेस्ट एक फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए Now, the first question is multiplicative inverse of minus 4 by 5 raised to power 6. We have to find the multiplicative inverse of this. Aristotle section. Janvi, please come. Janvi, you are there?
Yes, beta. What happened? Video is paused, I think. Alessandro, can you hear me? Your video is also paused. Yes. Okay, beta. Okay, Janvi, have you come? Can you tell me what is multiplicative inverse of minus 4 by 5 raised to power 6? Janvi, I can't hear you. Are you there? Okay. Any other child from Aristotle's section? Manjot Kaur. Manjot, are you there? Ma'am, she is absent. He's absent. Ronak, don't worry. I'll be calling from Aristotle only. This page is open in front of me. Yes. Can you tell me what is reciprocal of this? Reciprocal of this I'm asking, not multiplicative inverse. Now be comfortable. minus 5/4. Minus 5.4 what? आगे भी बोलो. Power 6. Minus Power 5 by 4 power 6. Is it all right? minus 5/4 minus power minus 6. Minus 6. Okay. You are writing the reciprocal of this. है ना? You are writing the reciprocal of this. It means you will be writing it as minus 4 by 5. Same number की power आपकी negative हो जाएगी. ठीक है, आप क्या करोगे इसका रेसिप्रोकल जब लिखोगे इट विल बी 1 upon minus 4 by 5 raised to power 6. It will be like this. This is the reciprocal. कोई भी नंबर का आप रेसिप्रोकल कैसे लिखते हो? उसको अपॉन कर देते हो, राइट? सो व्हाट इट विल बी? अगर मैंने 1 अपॉन कर दिया तो व्हाट इट शुड बी? It will become this. Is it so? Yes. है ना? You wrote the reciprocal of this, then you completed it in this form by removing the reciprocal, removing the denominator, you wrote it in this form. This is the multiplicative inverse of this number. Right? Okay, sit down. Second question, multiplicative inverse of 4 by 5 raised to power minus 2. 4 by 5 raised to power minus 2. Reciprocal of this. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, Anji beta. ma'am, can we also write the answer as minus 5 raised to power 6? This one? You can write minus 5 by 4 raised to power 6. Yes. First one. Yeah, I wrote first one only. Okay, ma'am. You know why? You should not have any doubt. You have to check yourself. In exam, you are doing it. You have to check yourself कि when I multiply this by minus 5 by 4, चलो power तो आ ही जाएगी, दोनों की 6 आ जाएगी. I have to check whether they are cut. If I am able to cut it, I am writing power as 6. So 1 power 6 into 1 power 6 will be 1 only. If I am getting 1, it means answer is correct. You should not have any doubt. This is the property of multiplicative inverse. Right? A number and its multiplicative inverse, when they are multiplied, answer should be 1. Judge it yourself. एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये ऐसा लिखना है या वैसा लिखना है, you multiply them and check it. If answer is coming 1, it means you are sure you have written correctly. Is it all right? This is the only thing you are learning in 8th class now. Okay? Check it yourself by doing it. Second question, multiplicative inverse of 4 by 5 raised to power minus 2.
4 by 5 raised to power minus 2. I must tell you, in such questions in this chapter, whenever you're writing answer, please write answer with positive power. Try to write all the answers in positive power, okay? Write answer in positive power. Focus on that. Positive power. Whether it is चाहे वो आपकी fraction में आए answer, चाहे without fraction आए, चाहे जैसा भी है, try to write answer in positive form. That should be the final answer. Okay. Now 4 by 5 raised to minus 2. Of course, you will be writing its reciprocal. Okay, you will be writing it as 1 upon 4 by 5 raised to power 2. इसको reciprocal कर दिया आपने. It should be what? This is the reciprocal of this. This is minus power. Okay, minus 2 है तो minus same ही रहेगा. इसका reciprocal है ये. This is not equal to. This is a reciprocal multiplicative inverse of this. What it should be? It should be 4 by 5 or 5 by 4 raised to power 2. 4 by 5 raised to power 2, sorry. Right? Have you done it, Beta? Have you done all of you? Aurobindo section, Harshil. Aurobindo section. Harshil, can you tell me, Beta? What have you found? Harshil, are you there? Can you tell me? Your voice is not clear. Is it 4 by 5 raised to power 2? Who have done it? Raise your hand. Your voice is not clear, Beta. All right. All right. Harshil, you can say it, Beta. Third question, you have to simplify. Again, the negative power has come. Third question, it is 2 by 3 raised to power minus 3 divided by 4 by 3 raised to power minus 2. Both have negative power. Please say it carefully. One thing is clear to you, that whenever there is negative power, we make them positive first and then solve it. Question becomes simpler for us whenever we make the power positive. It should be 3 by 2 raised to power 3 divided by 3 by 4 raised to power 2. At a time, do one step. सब कुछ इकट्ठा नहीं कर देना कि हाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, रेसिप्रोकल भी कर दिया, पॉजिटिव भी बना दिया. No. If this is of 2 marks question, do at least 2 steps, 3 steps. Okay? Make the powers positive first, then we will see what to do. It will be 3 by 2 raised to power 3 into 4 by 3 raised to power 4 by 3 raised to power 2. This you learnt in lower classes also. When there is a division of fraction, you reciprocal it and change the division sign into multiplication. Please solve it. Please solve it and tell me what is coming. Alessandro section.
Alessandro section, yes. Ma'am, 6. Answer is coming Ma'am, out. 6. Is coming. 6 is answer is correct. If you want, you can segregate the powers. You can write like this: 3 minus 2, and you can write it as 4 raised to power. You have to break this into 2. Base को 2 बना लो. ठीक है? 2 more steps you have to do here. But answer is correct. It is 6. ठीक है? It is coming out to be. But your video is pausing today है ना? काफी बच्चों का ये disconnect हो रहा है. I think there is a problem. Question number 3, answer is coming out to be 6. You can answer is 6. Beta, you can revise these questions at home also and do it patiently. Powers को carefully आपको लिखना है. Question number 4. Today we are doing maximum questions of negative power. 5 raised to minus 1 into 2 raised to power minus 1 into 6 raised to power minus 1. This was in bracket. Then there is division sign 6 raised to power minus 1. You can see very well all the powers are same: minus 1, minus 1, minus 1. Okay, you can put them together. You can do like this: 5 raised to minus 1 into 2 raised to minus 1 upon 6 raised to minus 1. You can put them all together: 5 into 2 by 6 raised to power minus 1. Don't jump to the next step, next step. I know you can do orally also, but there are chances to fall, there are chances to make a big mistake. So follow all the steps. चाहे आपके 2 steps extra हो जाए, but marks नहीं कटने चाहिए, है ना बेटा? Focus on that. Now it is very simple. Question has become simpler for you. Right? Just opposite of that. Just opposite of that, do it in lowest term. Okay, you can do it as 3 and 5. It will be 3 upon 5. Ma'am, your screen is not If you any doubt, but your video is pausing in between. You please copy down. It's copy down from the board also. Then you can revise at home. Okay. If there is any doubt, you can ask me next time also. Question number 5. Question number 5. It is 3 by 2. All are simplified questions. All the questions you have to simplify. Raised to power minus 2. 2 powers are there. One rule is known to you, power of a power, right? That you know. Let us follow that first. At a time, एक rule को apply करो. That is plus, minus minus plus, it will be power 4. Right? Since you have to simplify it, so you need to open the bracket 3 into 3 into 3 into 3, or you can do it orally. I'm doing it in expanded form so that you remember that we have to multiply them and then find the answer. Don't write answer in power form because this is simplification question. Right? Whenever they say ki simplify and write answer in power form, you can leave it here. But when it is simplified, you have to open it till the end. Don't leave the answer in power form. Right? Please tell me what is the answer here.
Ma'am, 81/16. 81/16. Yes, I was about to call the name. 81/16 is the right answer. And please remember, you have to reach here because this was simplification question. All right. All the questions, you have to do it. It is these are peculiar questions, not common questions. This is a good practice of this chapter. Don't leave any question, okay? Keep doing. You have to just follow the rules. It will give a good practice. Again, there is a simplification question of sixth one, -3/8 raised to power 3 divided by 9/4 raised to power 3. Okay? देखने में it is very very simple. Follow the rules. At a time, apply one rule. You can see very well when it was taught to you in 7th class, it was told to you कि make the basis same. Whenever such question come, your aim should be to make the base same. Okay, and you can make the basis same here. There's no doubt. You can do like this: 3 raised to power 3 upon 8 raised to power 3. Separate them first of all. 9 raised to power 3, 4 raised to power 3. Put them separately first of all to make it easier. You will not be able to make here otherwise. Okay, now then you remove the step by step. You go ahead, you write down 3 raised to power. You have to convert it into smallest base. 8 raised to power 3 raised to power 3 and do this. Change it into multiplication sign 2 raised to power 2 raised to power 3 raised to power 2 raised to power 3. This step is to be done very very cautiously. You have done. Have broken the bigger number. Right? Please understand here. You have broken the numbers where it was possible. You broke the 8, you broke 4, you broke 9 and made the basis same. Your aim was to make the basis same. There are 2 as a base and 3 as a base. Now it is easy. So go ahead. Now you move further. Now it is simpler for you. One step will trouble you. A negative sign. You can write -1 as this. Then you can treat them like this. 3 raised to power. I'm doing one more step for you. Then it will be easier for you. 2 raised to power 6, 3 raised to power 6. I have taken, -1 separately. Minus will not trouble you. -1 raised to power 3 I have taken because this is negative and negative we want to retain. Retain रखने के लिए we have taken the odd power. Minus is out and now you can treat them well. You know how to solve it. Please do the next step and tell me the answer. This is last question. Go ahead. -1/216. Yeah, that is fine. Answer is correct. But I want to focus on this negative sign especially. Few children they think of कि हमने negative वाला rule नहीं किया तो -3 ये चलता रहता साथ साथ में troubles you. So I have just segregated it. -1 को separate कर दो बिल्कुल. You need not worry. लास्ट में जाके हमने इसको नेगेटिव लगाना ही है. -1/2 raised to 216. That is fine. But here you should not be scared of negative sign. Don't bother about this. Separate कर दो इसको पहले and बाद में जाके इसको नेगेटिव में आंसर में लगा दो. ओके? क्योंकि सारे रूल्स आपने पॉजिटिव में पढ़े हैं
तो इनको सेपरेटली अपना सॉल्व करते जाओ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सच क्वेश्चन दे कम एंड you have to go very carefully, right? Please revise these questions bit at home till here. Next time we'll do further, and if you want you can practice more questions from this further if you know it. Doubt till here? Anything you want to ask? This is a good practice for you, beta, if you are doing it sincerely. Chalo, see you next time, beta. Take break for some time. Yes, students, you can join if you want for next 5 minutes also. We can do 2 more questions. Yes, beta, you can join. We'll be doing for 5 minutes more. Okay? मैम उन्होंने ब्रेक ले ली तो कोई बात नहीं दोबारा join करेंगे. हाँ, it's okay. It yourself. You have done it with good practice, good hard work. So keep it safe with you. Right? Till the time sir comes, till the time your science class starts, so you can do 1 or 2 more questions further. Okay?
Anybody who has done 7th also? You can raise your hand. Shall I tell you answer of 7th? 7th question. I'm telling you the answer. You can note down. You can try at home. This is 64 by 81. Question number 7. Answer is 64 by 81. You can try at home. You can try. Wonderful, wonderful. I can see hands. You have already done. Okay. Do it carefully. Okay. Question is not difficult. Only power score you have to treat well. Hands down. Question number 8. Find the value of x. Such question also come. I'm telling you the answer of 8th also. Right? You can see bases are same. You have to just treat the powers. So in 8th question, your answer is coming x is equal to -2. Write down the answer and try at home. Answer is x is equal to -2. Aurobindo also, you can note down the answers, you can try at home. Question number 7 also and 8th also. Okay. These are all of 3 marks questions because there are many steps to follow. In question number 9 also, there is n again. You have to treat 9. This is little difficult question. Question number 9 I want to do for you. You know, in question number 9, you have 243, which is the biggest number. 243 is the biggest number. You have to write it in power form. Okay, I'm giving you clue. Question number 9, I'm giving you hint. You can do at home. 243. Okay, this is represented as 3 raised to power 5. Then you can go ahead. Right? It will be 3 raised to power 5. The question was 3 raised to power 5. Write down one step, then you will be easily doing it at home. 3 raised to power 2n plus 1 upon, it was 9 raised to power n into 3 raised to power n minus 1. Make the bases same. Your aim should be to make the base same for all. You know, you can cancel here 5, 5. And one more step I am doing for you. 3 raised to power n into 3 raised to power 2n plus 1 upon 3 raised to power 2n into 3 raised to power n minus 1. Now it is very simple for you. Okay, answer is coming 9. Please follow 2 more steps to find the answer. Complete at home, okay? I've given you hint because this was a little different question, new also for you. See you next time, beta. Sorry, just coming, okay? Well, students, dear students, कैसे हो बेटे आप लोग? Where are the other sections? 2 sections आए. बेटे, whether there are 2 sections or 3 sections, please make it clear. मैम कितने sections हैं बताना प्लीज.
Sir, ma'am told 3. Okay. Write down everybody. शाबाश बच्चे, प्लीज राइट डाउन एवरीबॉडी। Sir, हाँ जी मैम। sir, our physics chapter is going on sound. साउंड का तो मेरे को तो ये बोला है, Sir, एक बार मैं पूछ लेता हूँ कोर्स। sir, this is in chemistry. Okay, sir. Chemistry syllabus booklet साउंड करते हैं, साउंड। सभी बच्चे राइट डाउन द हेडिंग साउंड, SOUND। Sir, this is in chemistry in our. This chapter is in our chemistry. बेटे This chapter, शाबाश this chapter is शाबाश also. बेटे, मेरे को आपने साउंड बोल दिया तो मैंने अपने डायरेक्टर साहब से कंफर्म करा है, वो कह रहे हैं सर ठीक है आप साउंड करा दो बच्चों को। ओके, सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे साउंड, Okay, sir. SOUND, SOUND, साउंड। ओके, देखो बेटे, नंबर 1 साउंड जो है उसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अ साउंड, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ए साउंड। साउंड कहां से पैदा होता है, सभी बच्चे क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज द सोर्स ऑफ साउंड। साउंड कहां से पैदा होता है बेटे, योर अटेंशन, हमेशा याद रखना है, साउंड जब भी पैदा होगा कंपन करती हुई चीज से पैदा होगा, जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, जो कंपन करती है लाइक दिस। ओके, तो साउंड उसी से पैदा होता है। तो आंसर इज साउंड सोर्स इज ऑलवेज ए वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी। बच्चा पूछते सर आप एग्जांपल दे सकते हो कैसे, मैं कहूंगा यस, एग्जांपल क्यों नहीं। एक एग्जांपल देखो, आपने ये इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, इसको बोलते हैं सितार, और इसके यहां पर इसका स्ट्रिंग लगा होता है बच्चे, यू मस्ट हैव सीन, इसका स्ट्रिंग लगा होता है यहां पर, ये देखो। इस स्ट्रिंग को जब हम प्लंक करते हैं तो ये स्ट्रिंग ऊपर और नीचे वाइब्रेट करता है, ऊपर और नीचे ऐसे कंपन करता है, तो यहां से बड़ी अच्छी आवाज निकलती है। ऐसे ही एक और इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम बताओगे आप, Guitar. सभी बच्चों ने बोला बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो गिटार में भी स्ट्रिंग होता है, व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ द गिटार इज प्लक्ड, वो भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा बेटे, और मीन पोजीशन से, और हमें आवाज सुनाई देगी। इवन आप ये भी देखो कि अगर ये जो इंसान है, मैं हूं आप हो, जब ये स्पीक करता है, आवाज करता है, तो ये हमारी आवाज निकलती कैसे, मैं बताना चाहूंगा। हमारा ये जो गला है, इसमें आगे को उभरी हुई एक चीज दिख रही है आपको,
इसको बोलते हैं एडम एप्पल। ये जो एडम एप्पल होता है, उसकी बैक साइड पर गले के अंदर ये जो उभरी हुई चीज है, उसके बिल्कुल एग्जैक्टली बैक साइड पर साउंड बॉक्स होता है। साउंड बॉक्स, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में लैरिंक्स भी बोलते हैं। उस लैरिंक्स के अंदर कुदरत ने मांस से बनी हुई दो स्ट्रिप्स लगा रखी होती हैं। ये ऐसे स्ट्रिप्स होती है उसके अंदर, मांस की बनी हुई, और दोनों की दोनों आपस में पैरेलल होती है। उनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स। जब इंसान सांस लेता है, हवा बाहर जाती है या अंदर जाती है, इनहेल या एक्सहेल, तो उस हवा के बाहर अंदर जाने से हम इस वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करते हैं, लाइक दिस। ये ऐसे वाइब्रेट करती है, अपनी मीन पोजीशन से इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी। तो जो वोकल कॉर्ड्स है, उनकी वाइब्रेशन से ही इंसान की वॉइस बनती है, आवाज बनती है, साउंड बनती है। कितनी एग्जांपल्स देखी। मेरे को एक बच्चे ने बोला, ध्यान से सुनना, पिछली क्लास में, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था, सर अगर हर चीज कंपन वाली से आवाज आती है, तो ये देखो मेरा हाथ कांप रहा है, इसमें तो मेरे को कोई आवाज नहीं सुनाई देती। बच्चे ने मेरे को बोला ये भी तो कंपन कर रहा है। मैंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि वाइब्रेटिंग बॉडी तो होती है सारी आवाज, क्या सारी वाइब्रेटिंग बॉडी से आवाज सुनाई देगी? नो। तो कौन सी से सुनाई देगी? ये हमारा क्वेश्चन है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वाइब्रेटिंग बॉडी, शाबाश, लिखो एवरीबॉडी, विच वाइब्रेटिंग बॉडी produces sound and which not? Which vibrating body can produce sound? और इसका मतलब कुछ ऐसी भी हैं जो वाइब्रेट तो करती हैं लेकिन आवाज पैदा नहीं करती। ध्यान से सुनना, अब इसका बहुत ही बढ़िया आंसर है। अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आता होता, इवन 10th क्लास से पूछ के देखना, बाद में बता नहीं पाएंगे आप। मैं सुना सिखाता हूं अभी। ध्यान से देखो, पहले टीचर स्पेस बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को इरेज करके मेरे पास स्पेस बन गया, मैं अच्छे से बच्चे को समझाता हूं। देखो बेटे, अगर कोई चीज कंपन करती है, जैसे कि टीचर ये बता रहे, ये कोई ऐसे पत्ती, मान लो लोहे की पत्ती है, स्ट्रिप ऑफ द आयरन, ओके, और मैंने इसके बेस को फिक्स कर दिया, बेस इज फिक्स, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे एक तरफ खींच के छोड़ देता हूं, तो ये वाइब्रेट करेगी ऐसे, राइट। अब ध्यान से सुना, ये अपनी मेन पोजीशन से इधर गई, कहां तक गई? एक्सट्रीम पोजीशन तक। कहां से? मेन पोजीशन से। फिर उस एक्सट्रीम पोजीशन से सिमेट्रिकली लेफ्ट साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगी, सिमेट्रिकली। पहले एक्सट्रीम पोजीशन राइट, अब एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट, फिर यहां से वापस मीन पे जाएगी, मीन पे गई, और ये प्रोसेस जारी रहता है। मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन राइट, टू एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट, एंड बैक टू द मीन, अगेन सो ऑन। तो ये जो टीचर ने अभी इस वक्त दिखाई है, एक बार जब ऐसा करती है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से अनदर एक्सट्रीम, एंड बैक टू द मीन, ये जो टीचर ने दिखाई है पेपर में, इसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड के अंदर अंदर ऐसी, कितने टाइम के अंदर अंदर? विद इन 1 सेकेंड, ऐसी ऑसिलेशंस कितनी बना दे? 20 ऑसिलेशन, कम से कम 20 ऑसिलेशन, तो ही हमें वो आवाज सुनाई देगी। 20 ऑसिलेशंस तो इंसान को आवाज सुनाई देगी।
कोई बच्चा कहता है सर अगर इससे कम 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 बनाए, मान लो 18 बनाती है तो 1 सेकंड में ऐसी 18 ऑसिलेशन, तब टीचर बोलेगा बेटे वो वाली आवाज डॉग्स को सुन सकती है, किसी और जानवर को सुन सकती है, पर इंसानों का कान ऐसा बनाया है कुदरत ने, उनको नहीं सुनाई देगी। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं हम? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इंसान को सुन सकती है। तो बच्चे को समझ आया सर? मेरे को समझ आया। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, और वो कम से कम 20 होनी चाहिए। शाबाश। एक बार फिर से देखो, दूसरी क्लास का लिंक टूट गया था, इसलिए मैं दोबारा से थोड़ा सा बोलता हूं। तो बच्चा ये मेरे से पूछता है कि सर ये जो 20 ऑसिलेशंस आपने 1 सेकंड में बताई, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगी या उससे ज्यादा होगी तो इंसान को सुनेगी। अगर उससे कम होगी, जैसे 18, जैसे 10, जैसे 5, ये इंसान के कानों को नहीं सुनाई देती। बच्चा कहते हैं सर आपने बोला 20 से ज्यादा वाली भी सुनाई देगी, लेकिन 20 से ज्यादा कहां तक, कितनी ज्यादा तक हमें सुनती रहती है? तब वो टीचर कहता है बेटे अगर ये वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड के अंदर अंदर 20 को छोड़ो, 20 को छोड़ो, 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 ऑसिलेशन 1 सेकंड में कवर करती है, तो भी वो सुनाई देती है। और वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो इंसान के कानों को सुनाई देती है। बच्चे बोलते सर अगर 21,000 हो तो? तब टीचर कहेगा बेटे तब वो वाली फ्रीक्वेंसी और चीजों को सुन सकती है, चमगादड़ को सुन सकती है, बैट को सुन सकती है, हमें नहीं सुन सकती। ठीक है, तो ऐसे किसी और चीज को सुन सकती है। ये आप बात ये हुई कि इंसान का कान कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी सुन सकता है? 20 हर्ट्ज, ज्यादा से ज्यादा 20,000 हर्ट्ज। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो ही हमें सुनाई देगी। और इस रेंज को 20 हर्ट्ज से लेकर कहां तक, देखो ये 20,000 को हम 1000 को किलो बोल सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 से 20 किलो हर्ट्ज इंसान को सुनाई देती है। इसको बोलते हैं ऑडियो रेंज, ऑडियो रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों को इसके अंदर अंदर अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी होगी वही सुनाई देगी। तो कोई बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब जानवरों की, पक्षियों की, उनकी ऑडियो रेंज अलग होगी? बिल्कुल अलग होगी। हाँ बोलो बेटे। एक प्यारा सा बच्चा कुछ पूछ रहा है। सर नेटवर्क कनेक्शन लो सर आप सर। सिग्नल जैसा। और हाँ बेटे मेरे को पता लग गया नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ आपका। तो टीचर ने ये बोला है अगर वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होगी तब ही वो इंसान को सुनाई देती है। तो क्वेश्चन देखो, विच वाइब्रेटिंग बॉडी कैन प्रोड्यूस, लिखना चाहिए था प्रोड्यूस बेटे, प्रोड्यूस, DUCE, प्रोड्यूस साउंड। तो आपका आंसर बनना चाहिए ओनली दैट वाइब्रेटिंग बॉडी कैन प्रोड्यूस साउंड whose frequency of oscillations is between 20 and 20 kilohertz, 20 hertz to 20 kilohertz। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो रेज योर राइट हैंड। शाबाश, रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। हाँ बेटे अच्छे से हाथ खड़ा करो ना। और मेरे को ये टीचर से रिक्वेस्ट है कि कैमरे को थोड़ा डाउन करें, मेरे को सीलिंग फैन दिखाई देते हैं और बच्चे दिखाई नहीं देते। ओके शाबाश, डाउन डाउन डाउन। अब अगली बात सुनते हैं। शाबाश। अब बच्चे, हाँ यस, व्हाट डू यू वांट टू से? Sir, यस आई एम लिसनिंग, बेटे स्पीक आउट। sir, can you please explain
तो This एक topic again, ओके ओके I am unable to understand. हाँ, एक बच्चे का बोला है कि सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से मेरे को सर ये आपकी आवाज कटकटा कोई बात नहीं, कोई नहीं। मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा। डोंट वरी प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हाँ, मैं टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरे का फेस नीचे को करें, क्योंकि मेरे को अलेजेंड्रो में और एरिस्टोटल में सीलिंग फैन दिख रहे हैं, बच्चे नहीं दिख रहे, जबकि अरविंदो का कैमरा बिल्कुल सही है मेरे। तो कुछ बच्चों ने बोला नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से सर थोड़ा सा दोबारा बता दो। तो यस, आई एम टेलिंग अगेन फॉर माय स्टूडेंट्स। शाबाश, दोबारा सुनो। क्वेश्चन क्या था? एक बच्चा कह रहा है सर ये तो समझ आ गया कि आपने बोला साउंड का जो सोर्स है वो हमेशा ही वाइब्रेटिंग बॉडी होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी। तो वाइब्रेटिंग बॉडी को दूसरे शब्दों में ऑसिलेटर भी बोलते हैं। ऑसिलेटर, साउंड का सोर्स ऑलवेज और ऑलवेज कंपन करती हुई चीज होती है हमेशा। इसकी हमने एग्जांपल भी करी थी, गिटार, सितार, इंसान के गले में लगी हुई वोकल कॉर्ड्स। अब उसके बाद टीचर ने ये सिखाया था, जो नेटवर्क की वजह से डिस्टर्ब हो गया, कि सर एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी क्या साउंड का सोर्स हो सकती है? एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी क्या साउंड का सोर्स हो सकती है? साउंड सोर्स। तो प्लीज हमें बताइए यस या नो। जो भी आपका आंसर है उसका लॉजिक बताओ। तो यहां पर टीचर बोलेगा बेटे एवरी की बात कर रहे हो, तो आंसर इज नो। तो बच्चा बोलेगा सर फिर हमें यह बताओ कौन सी वाइब्रेटिंग बॉडी आवाज पैदा करेगी और हमें सुनाई देगी, और कौन सी वाइब्रेटिंग बॉडी कंपन करती भी दिखेगी लेकिन आवाज सुनाई नहीं देगी, वो बताओ आप। तब टीचर उसको समझाता है कि बेटे इस पॉइंट को समझने के लिए आपको एक टेक्निकल टर्म समझनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सर उसको मापने के लिए यूनिट होती है हर्ट्स, HERTZ, हर्ट्स। सर ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी? तो सुनो ध्यान से, मैं इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। मैंने अपने बच्चे को बोला, मैंने एक लोहे की स्ट्रिप ले ली, लोहे की स्ट्रिप, पत्ती ले ली लोहे की, आयरन स्ट्रिप, और उस आयरन की स्ट्रिप को ऐसे मैंने लकड़ी के बेस में फिक्स कर दिया, लकड़ी के बेस में फिक्स कर दिया बेटे उसको। अब मैंने उसको नीचे जमीन में जमा दिया, टेबल पे जमा दिया। अब इस जो लकड़ी की स्ट्रिप है इसको मैं वाइब्रेटिंग कराऊंगा, कंपन कराऊंगा। बच्चा कहता है सर कैसे? मैं कहूंगा जैसे ये लोहे की स्ट्रिप है, मैंने इसको ऐसे धक्का मार दिया तो ये ऐसे 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 वाइब्रेट करेगी। जब ये वाइब्रेटिंग कर देती है तो बच्चे को बताया जाएगा कि इस वक्त ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन वाइब्रेटिंग करी तो ये यहां तक पहुंची, एक्सट्रीम पोजीशन राइट साइड, वहां से ये वापस दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट पर पहुंचेगी, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से बैक टू द मीन पोजीशन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम सिमेट्रिकली, एंड बैक टू मीन। ये जो टीचर ने बोला बेटे जितनी मैंने ये दिखाई है इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। कोई बच्चा बोलेगा सर पर ये पत्ती तो लगातार ऐसे ऐसे करती रहेगी। तो मैंने कहा जितना आपको दिखाया है उसके बाद अगर कंपन करेगी तो सेकंड ऑसिलेशन शुरू हो जाएगी, फिर थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है। अब मैं उस बच्चे को बोलूंगा कि मैंने इस लोहे की पत्ती को जो टोटल टाइम दिया वाइब्रेट करने के लिए, टाइम गिवन, वो दिया मैंने ओनली और ओनली 1 सेकेंड। ओके सर, फिर मैं बोलूंगा कि 1 सेकेंड के अंदर अंदर मैं ये देखूंगा ये वाइब्रेटिंग बॉडी कितनी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करती है। अगर एक ऑसिलेशन इतनी होती है तो 1 सेकेंड के अंदर अंदर ये कितनी ऑसिलेशन कवर कर देती है, 1 सेकेंड के अंदर। यानी बहुत तेज वाइब्रेट करना पड़ेगा, 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए टाइम। एक बच्चा कहता है सर 18 टाइम्स कर रही है, 18 टाइम्स, एग्जाम्पल ले रहे। मैंने कहा आपको पता है अगर 18 टाइम्स 1 सेकंड में वाइब्रेट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी है 18 हर्ट्स।
एक बच्चा कहता है सर मेरे वाली पत्नी तो 15 बार कर रही है। मैंने कहा आपकी स्ट्रिप की फ्रीक्वेंसी होगी 15 हर्ट्ज। तो बच्चे कहते हैं सर ये दोनों सुनाई देंगी? बिल्कुल नहीं सुनाई देंगी। यहां से एक बात क्लियर होगी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर अंदर जितनी ऑसिलेशंस कवर कर दी जाएंगी वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बच्चे कहते हैं सर आप कह रहे हो ये भी नहीं सुनाई देगी, ये भी नहीं सुनाई देगी, पर ये वाइब्रेटिंग बॉडी तो है, तो सुनाई कौन सी देगी? तब टीचर अपने बच्चे को समझाएगा बेटे इसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होनी चाहिए। 20 हर्ट्ज। सर आपका मतलब यह हुआ कि एक सेकंड के अंदर अंदर ऐसी 20 ऑसिलेशंस कवर कर दे? एक सेकंड में 20 ऑसिलेशंस ऐसी? मैंने कहा यस, वो भी कम से कम। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी तो इंसान के कान उसको सुन सकते हैं। सर ज्यादा कितना? अच्छा इससे ऊपर जो होगी 22, 25, 100, मैं कहा वो भी सुनेगी। सर 1000 वो भी सुनेगी। सर 20,000 वो भी सुनेगी। सर 20,000 से ऊपर नहीं सुनेगी। इसका मतलब है अगर यही कांपने वाली बॉडी एक सेकंड में 20,000 बार भी वाइब्रेट करती, 20,000 ऑसिलेशंस दिखाती एक सेकंड में, तब भी इंसान को सुनाई देती। और वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती 20,000 हर्ट्ज, जिसको कि हम 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। अब बच्चा बोलेगा सर आपका मतलब है इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के अंदर अगर वाइब्रेट करेगी इतनी फ्रीक्वेंसी लेके कहीं भी बीच में, तो ही इंसान को सुनाई देगी? टीचर बोलेगा यस सर, अगर इससे कम हो नहीं सुनाई देगी, 20,000 से ज्यादा हो तो इंसान को तो सुनाई नहीं देती, जानवरों को सुनाई दे जाती है। सर इसका मतलब हो गया कुदरत ने इंसान के कानों को सुनने की इसके अंदर अंदर ही शक्ति दे रखी है। यस, टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ऑडियो रेंज होती है। ऑडियो रेंज किसके लिए? फॉर एवरीबॉडी नहीं, फॉर ओनली ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के लिए। इंसानों के लिए इसको बोलते हैं, पेपर में आ सकता है व्हाट इज द ऑडियो रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सुनाई देगी, उसके बाहर नहीं सुनाई देगी। अब बताओ मेरे बच्चों को समझ आ गया कि कौन सी बॉडी की कंपन करती हुई आवाज पैदा करेगी, कौन सी नहीं करे? अगर यस तो रेज योर राइट हैंड। शाबाश, अगर समझ आ गया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक और चीज समझते हैं। कोई बच्चे मेरे को बोलते हैं सर पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी नहीं समझ आ रहा था, अब हमें समझ आ गया फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। एक बच्चा कहता है सर मान लो ये कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, और यहां पर इंसान खड़ा हुआ है, तो क्या इस इंसान को उसके कंपन करने की वजह से आवाज सुनाई देगी? आवाज सुनाई देगी? आप जवाब दो, जवाब उसको आवाज सुनाई देगी या नहीं देगी? बोलो। तो सुनाई देगी। सुनाई देगी। एक बच्चा कहता है सर मैं बताऊं, मैंने कहा बोलो बेटे। कह रहा आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना एफ डैश, वो एफ डैश देखो आप 20 हर्ट्ज से ज्यादा है, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से कम है। मैंने कहा ठीक है, आपकी 100 फ्रीक्वेंसी इस रेंज के अंदर अंदर आ गई, इसका मतलब इस इंसान को सुनाई देगी आवाज। मैंने कहा बेटे आपका आंसर सही हो सकता था, लेकिन अगर एक शर्त पूरी हो जाए। सर अभी भी कोई शर्त है? यस, देयर इज एक वन शर्त, देयर इज वन कंडीशन, तभी सुनाई देगी। कौन सी? जो चीज वाइब्रेट कर रही होती है, यानी कि वाइब्रेटर, उसी का एक नाम और भी हो सकता है, कौन सा? ऑसिलेटर। वाइब्रेटिंग बॉडी से लेकर आवाज ना, वाइब्रेटिंग बॉडी से लेकर इंसान के कानों तक, यहां पर कोई ना कोई मीडियम का होना जरूरी है। मीडियम प्रेजेंस इज मस्ट।
मीडियम प्रेजेंस इज मस्ट। सीधे पेट लगाया सी ठीक। अब बच्चा बोलता है बेटे नो म्यूचुअल टॉक प्लीज। अब बच्चा बोलते हैं सर ये नहीं मेरे को समझ आया क्या बोल रहे हो। टीचर कह रहा है कंपन करती हुई चीज से इंसान के कानों तक कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, जैसे हवा होनी चाहिए, जैसे यहां से यहां तक पानी होना चाहिए, जैसे यहां से यहां तक स्टील की तार लगी हो, आयरन होना चाहिए, जैसे कोई भी अदर मीडियम होना चाहिए तो ही सुनाई देगी। बच्चे कहते हैं सर मान लो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दूं। वैक्यूम, पहले तो मैंने बच्चे से पूछा वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम होता है सर, बच्चा कहता है सर टोटली फ्री स्पेस। मैंने कहा उसका क्या मतलब। सर जहां पर हवा भी नहीं है, टोटली फ्री स्पेस, उसको वैक्यूम बोलते हैं। आई सेड यस। तो अगर मैं यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दूं इंसान के कानों और वाइब्रेटरी बॉडी के बीच, तो क्या उसको आवाज सुनाई देगी 100 हर्ट्ज पे भी? तो आंसर है नहीं सुनाई देगी। मतलब ये हुआ कि ऑडियो रेंज के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद एक और शर्त है, एक कंडीशन है, और वो कंडीशन है किसी मीडियम की प्रेजेंस का होना जरूरी। साउंड कभी भी वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर पाती। साउंड हमेशा मीडियम की डिमांड करती है कि मेरे को अगर मीडियम दोगे तो ही मैं सोर्स से लिसनर तक पहुंच पाऊंगी। ऐसी कोई भी वेव जो किसी मीडियम की नेसेसरीली मैंडेटरी प्रेजेंस मांगे, उस वेव का नाम होता है, याद रखना, इलास्टिक वेव, मैकेनिकल वेव। दो नाम है इसके, इलास्टिक वेव, मैकेनिकल वेव। तो आपको बच्चे को क्वेश्चन पूछते हैं साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, या दूसरे शब्दों में इलास्टिक वेव। ये क्वेश्चन लिख दिया और क्वेश्चन के बाद लिखता है कमेंट। कमेंट, ये क्वेश्चन आ गया तो मेरा प्यारा सा बच्चा बोलेगा साउंड एक ऐसी वेव है जो सोर्स से लिसनर तक पहुंचने के लिए जरूरी तौर पर, नेसेसरीली, मैंडेटरी, पक्का, लाजमी मीडियम की प्रेजेंस मांगती है। और कोई भी ऐसी वेव जो मीडियम की प्रेजेंस के बिना मूव ना कर सके उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। इसका मतलब हुआ साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। ओके, दूसरे शब्दों में मैकेनिकल वेव को इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। एक बच्चा कहता है सर मान लो मैं यहां लोहे की स्ट्रिप को हटा दूं, मैं इसकी जगह बल्ब ऑन कर दूं, बल्ब। मैंने कहा ओके। कहते बल्ब की लाइट तो पहुंच जाती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बल्ब की लाइट तो तब भी पहुंच जाएगी अगर मीडियम है, और वैक्यूम भी है तो भी पहुंच जाएगी बल्ब की लाइट। इसका मतलब बल्ब से चलने वाली लाइट मीडियम को जरूरी तौर पर मांग नहीं करती, वो बिना मीडियम के भी जा सकती है लाइट। ऐसी चीज को, ऐसी वेव को जो बिना मीडियम के भी जा सके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? EM वेव। शॉर्ट में उसका एब्रीविएशन बहुत चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब सारा डिस्कशन किया, एक बच्चा कहता है सर मेरे को आपकी सारी बात समझ आ गई, आई सेड समरी करो। बच्चा बोलता है सर साउंड एक मैकेनिकल वेव है क्योंकि वो सोर्स से रिसीवर तक बिना मीडियम के जा नहीं सकती। आई सेड यस। दूसरी बात, एक बच्चा बोलता है सर लाइट तो बिना मीडियम के भी जा सकती है, इसको हम मैकेनिकल वेव नहीं बोलेंगे, लाइट को, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही। तीसरा बच्चा बोलता है सर मीडियम के प्रेजेंस होने के बावजूद ये कंपन करती हुई बॉडी की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच बीच में होनी चाहिए, बराबर भी हो सकती है इनके।
तभी आपको सुनाई देगी आवाज। मीडियम चाहे प्रेजेंट भी हो, फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी 20 से कम है या 20,000 से ज्यादा है तो मीडियम प्रेजेंट भी हो तो भी आवाज सुनाई नहीं देगी। आई सेड यस। तीनों बातें आपको समझ आ गई। क्या आपको ये तीनों बातें समझ आ गई है मेरे प्यारे बच्चों को? इफ यस तो रेज योर राइट। इफ यस तो रेज योर राइट हैंड। वेरी गुड। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो लेफ्ट हैंड खड़ा करो। डाउन डाउन डाउन, राइट वाले डाउन। किसी को नहीं समझ आई प्यारे से बच्चे को तो वो लेफ्ट हैंड खड़ा करो। लेट मी चेक कितने बच्चों लेफ्ट हैंड। हाँ, कोई बच्चा अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछना। सर हाँ बोलो बोलो। देखो इसकी ऑटोमेटिकली टर्न आ गया। बोलो बेटे, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सर जैसे सर हम ताली ताली बजाते हैं तो सर उसके अंदर तो कोई वाइब्रेशन होती नहीं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। बैठो बैठो बैठो, मैं समझ गया। बैठो बैठो बैठो। एक बच्चा कहता, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे तो मेरे को अगर क्वेश्चन कर करके पढ़ोगे फिर तो मेरे को पढ़ाने का मजा आ जाए। जानते हो एक बच्चे ने क्या क्वेश्चन करा? सर ये देख, आपको आवाज सुनाई देती है? मैंने कहा बिल्कुल। सर मेरे को कहता है बच्चा, बताना इसमें कौन सी वाइब्रेटिंग बॉडी है। ये तो ताड़ी मारी, रुक गया मैं। ताड़ी मारी, रुक के कौन सी कंपन करती हुई चीज है? बच्चा कहता है फिर आवाज कैसे आ गई? आपने अभी अभी क्या बोला था कि हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी से ही आवाज आती है। मैंने कहा ये तो फिर, अब ये देखो कौन सी चीज वाइब्रेट कर रही है? ना कांच वाइब्रेट कर रहा है, ना पेन वाइब्रेट कर रहा है। अब ये देखो, और उससे भी हार्ड प्रिज्म ले लिया। सर ये आवाज कहां से आ गई? अब सुनो ध्यान से। बच्चे को लगता है जब टीचर ने प्रिज्म के साथ स्टिक से हिट करा, स्टिक से हिट करा, तो स्टिक से हिट करने पर वाइब्रेटिंग करती हुई तो कोई बॉडी दिखती नहीं, कंपन करती हुई बॉडी दिखती नहीं है, वाइब्रेटिंग बॉडी। तो फिर यहां से आवाज इंसान के कानों तक कैसे पहुंची? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो, मैं उस बच्चे को बोलूंगा बेटे जैसे इस स्टिक को आपने हिट करा प्रिज्म के साथ तो आप इसका वीडियो बना लो। बच्चे ने बना लिया वीडियो। मैंने कहा अब इस वीडियो को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो। सर वो क्या होता है? जो इसको 10,000 गुना बड़ा कर सकती है। किसमें देखना है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इसमें देखो। और वीडियो को चलने में थोड़ा सा स्लो कर दो। तो उसने देखा कि ये छोटी सी डायग्राम का इतना सा हिस्सा इतना बड़ा दिखेगा। देखो ऐसे ये प्रिज्म की बॉडी दिखेगी, ओके। और ये लकड़ी की जो स्टिक है ये इतना बड़ा ऐसे कोई दिखेगा, बड़ा सा दिखेगा उसको हिट करता हुआ, क्योंकि हमने बहुत बड़ा गुणा कर दिया उसको। जब इतना बड़ी डायग्राम दिखेगी उसको, मैग्नीफाइड व्यू होएगा, तब आप देखना प्रिज्म का सरफेस भी वाइब्रेट करेगा और लकड़ी की स्टिक जिससे हिट कर रहा था वो भी धीरे धीरे कंपन करती हुई दिखती है मैग्नीफाइड व्यू में। मैग्नीफाइड व्यू में दिखती है। इसका मतलब है, बच्चा कहता है सर ऐसा, इसका मतलब ऐसी वाइब्रेटिंग बॉडीज भी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है कंपन करती हुई, पर रियलिटी में कंपन करती हैं। टीचर का आंसर है यस। कोई भी बॉडी जो आवाज पैदा कर देगी और वो कंपन ना करे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। चाहे इंसान की आंख को दिखे या नहीं दिखे। कभी कभी वो दिखती है जैसे गिटार की वायर, और कभी नहीं दिखती तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो। सर ऐसा क्यों होता है? कोई वाइब्रेटिंग बॉडी दिखती है उसमें से आवाज सुनती है, कोई दिखती भी नहीं है तो भी आवाज सुनती है, पर वाइब्रेटिंग सारी होती है, मानते हैं आपकी बात, लेकिन कुछ बॉडीज हमें दिखती क्यों नहीं है? तब टीचर कहेगा आप शायद भूल गए हो फ्रीक्वेंसी की ऑडियो रेंज इंसान के लिए कितनी वाइड थी। इंसान के लिए कितनी? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो कुछ इतनी लंबी रेंज में किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को इंसान की आंख डिटेक्ट कर पाती है, और जो किसी बॉडी को नहीं कर पाती, जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। इज दैट क्लियर? यहां से बच्चों को पता लगना चाहिए यस, अगर आवाज पैदा होगी, ग्लास स्लैब लिया, टीचर के हाथ में पेन है,
दोनों को हिट करो, आवाज आ रही है, ना तो पेन वाइब्रेट करता हुआ दिख रहा है, ना ग्लास वाइब्रेट करती है। पर इसकी वीडियो बनाओ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो और वीडियो को स्लो करो, 100% आपको ग्लास स्लैब का सरफेस ऐसे 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 वाइब्रेट करता दिखेगा। 100% इस पेन का ये टुकड़ा जो इसे हिट कर रहा है, वो वाला पोर्शन आपको गारंटेड तौर पर ऐसे 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 वाइब्रेट करता हुआ दिखेगा। किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं जहां पर हमें डायरेक्ट वाइब्रेटिंग चीजें आंख से ही दिखाई देती हैं। ये डिपेंड करता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी कहां पर है, यहां पर कि यहां पर कि यहां पर कि यहां पर, कौन सी रेंज में कहां पर है। छोटी वाली रेंज वाली फ्रीक्वेंसी हमें डायरेक्ट दिख जाती हैं आंख से, और बड़ी फ्रीक्वेंसीज हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखती है। क्या क्लियर हो गया उस बच्चे को जो ताली वाला क्वेश्चन पूछ रहा था? जो बच्चा कह रहा था सर ताली मारने से कैसे आवाज सुनती है, वाइब्रेटिंग बॉडी तो है नहीं है, उसको क्लियर हो गया? बोल ही नहीं रहा बच्चा। यस इसका मतलब है जब हम ताली मारते हैं तो हमारी हथेली का ये सरफेस, हो गया। इधर से फिंगर्स का ये सरफेस, इसका वीडियो बनाओ और मैग्नीफाई करके देखो, आपको हथेली का सरफेस भी कंपन करता दिखेगा और फिंगर्स की स्किन भी कंपन करती हुई दिखेगी। गारंटेड है, वरना आवाज ही नहीं आती। तो यहां से जितना भी हमारा लेक्चर लगा, आपको चेक चेक करो आपको साउंड के बारे में क्या क्या समझ आना चाहिए। पहली बात साउंड क्या होती है। दूसरी बात साउंड का सोर्स क्या होता है। एक्सक्यूज मी सर। साउंड के ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, क्या उसी लिए उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं? और उसी का नाम टीचर ने इलास्टिक वेव भी बोला था। यस। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? इंसान की ऑडियो रेंज कितनी है? अपने आप को चेक करो, ये सारी बातें समझ आई? ऑडियो रेंज कितनी होती है? कुछ वाइब्रेटर्स हमें दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते। वाइब्रेटर्स कैन बी सीन और नॉट सीन बाय नेकेड आई। बाय नेकेड आई, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी के लिए माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है फ्रीक्वेंसी की रेंज के हिसाब से। कोई एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जब सीटी मारते हैं सर तब कैसे आवाज प्रोड्यूस होती है? कब कब? रिपीट योर सर क्वेश्चन। जब सीटी मारते हैं। वेरी गुड। देखा, कोई बच्चा और जवाब देगा, सर जब हम सीटी मारते हैं, सीटी मारते हैं तो आवाज कैसे पता होती है? सुनो, अब दो बातें हैं। एक तो पता नहीं बच्चा सीटी बोलता है गले वाली सीटी अपने मुंह से, तब वोकल कॉर्ड्स काम करती हैं, वोकल कॉर्ड्स। और लेकिन जो दूसरी सीटी मारते हैं जो ऐसे वाली होती है, शायद आपने कभी देखी हो, जो ऐसे वाली सीटी होती है बेटे, ठीक है, इसके अंदर हम एयर ब्लो करते हैं तो सीटी में से आवाज कैसे आती है सर? तो ध्यान से, आपको शायद पता नहीं है, इस सीटी के अंदर एक एक बीड मोती सा डाला होता है, मोती डाला होता है इसके अंदर। जैसे आप हवा फ्लो करते हो तो वो बीट अंदर कंपन करता है, इधर उधर इधर उधर, और आवाज सुनाई देती। ठीक है, तो इस तरह से विसल में हमें आवाज सुनाई देती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द बीड। और वो बीड अंदर वाइब्रेट करता है हवा के फ्लो की वजह से, जो इंसान ब्लो करेगा अपने माउथ से। आगे बढ़ते हैं। अब आपके डाउट क्लियर हो गए? टीचर आगे बढ़ सकता है या कोई और क्वेश्चन पूछना है प्यारे प्यारे बच्चों ने? इफ यू डोंट वांट टू आस्क, मैं अगली बात बताऊं, अगर पूछना है तो पूछो कुछ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन तो करो तभी आंसर दूंगा। एक बच्चे ने एक्सक्यूज मी सर बोलने के बाद कुछ बोला ही नहीं, तो इसलिए मेरे को आगे बढ़ना सर पड़ा। जब सर एक्सक्यूज मी सर। यस,
सर जब पेन के कैप में आवाज फूंक मारते हैं सर तब भी आवाज प्रोड्यूस होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बच्चा कहता है, ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला, जानबूझ के उसने मोती वाला पॉइंट कवर खत्म कर दिया। सर ये पेन की कैप है, इसमें यहाँ हैंडल लगा होता है, हम जब इसमें मारते हैं, ये तो कैप अंदर से खाली होती है कि नहीं खाली? तो मैं अब यहाँ कैप को यहाँ पर रखूं और फूंक मारूं तो मेरे को आवाज सुनाई देती है। यहां कौन सी चीज कंपन करने लगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता नहीं है बेटे, जब आप इसमें फूंक मारते हो तो इसमें इतना हिस्सा हवा का एयर कॉलम कहलाता है। एयर कॉलम, COLUMN, एयर कॉलम। ये पूरा एयर कॉलम आपके पेन की कैप में हवा मारने से पूरा का पूरा एयर कॉलम वाइब्रेट करता है। इसका मतलब यहां एयर कॉलम खुद एक वाइब्रेटर है, और वाइब्रेटर तभी साउंड का सोर्स बन जाता होता है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के अंदर होती है। और ऐसा देखा गया, जब बच्चा इसमें हवा मारता है तो एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी इसी रेंज के अंदर आती है। यानी कि पेन की कैप में साउंड का प्रोड्यूसर हुआ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, हवा का वो पोर्शन जो पेन की कैप में खुद ही वाइब्रेट करता। अब मेरे को अपने बच्चों को आगे लेके बढ़ना चाहिए, राइट? बहुत सी बातें बता दी। अब ध्यान से सुनो, बच्चा बोलता है, ध्यान से सुनो, सर जो साउंड होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो कितनी तेजी से चलती है, कितनी तेज चलती है? योर अटेंशन, साउंड की स्पीड बोल दो, या स्पीड बोल दो बेटे, या वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात आपकी क्लास के। ये कितनी होती है सर? अब सुन लेना ध्यान से। नंबर 1, साउंड की वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड लाइट की स्पीड के सामने, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड के सामने बहुत ही लेस होती है, बहुत लेस। सर ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि लाइट की स्पीड एयर के अंदर, इन एयर, अगर कंपैरिजन करा जाए तो वो तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चा, सर मेरे को नहीं समझ आया, ये पावर आपने क्या लिख दिया? तो टीचर उसको बोलेगा, ध्यान से सुनो, 3 उसके साथ 8 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने मीटर एक सेकंड के अंदर अंदर लाइट ट्रेवल कर देती है, लाइट। लेकिन सर साउंड कितना ट्रेवल करती है हवा के अंदर? तो मैं बोलूंगा बेटे, साउंड की वेलोसिटी या स्पीड एयर के अंदर रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं रूम टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर को, वो होती है 346 मीटर पर सेकेंड, लगभग 350 मीटर पर सेकेंड। जस्ट सी द कंपैरिजन। यानी लाइट की वेलोसिटी, जिसको सी से लिखते हैं लाइट की वेलोसिटी का, पक्का सिंबल है, लाइट की वेलोसिटी तो साउंड की वेलोसिटी के मुकाबले बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सर आप कैसे कह सकते हो ये बहुत ज्यादा है? सुनो, जब आसमान में क्लाउड्स थंडर होता है, क्लाउड्स थंडर रेनी सीजन में, और वहां पर बिजली भी कड़कती है, लाइटनिंग, लाइटनिंग, ये आपको सुन के बड़ी हैरानी आएगी कि क्लाउड का थंडर और लाइटनिंग, क्लाउड्स के अंदर जब पैदा होती हैं, क्लाउड्स के अंदर उनका इंस्टेंट ऑफ प्रोडक्शन सेम होता है, इंस्टेंट ऑफ प्रोडक्शन सेम मोमेंट होता है, सेम मोमेंट। लेकिन जमीन पे खड़ा हुआ बच्चा जो इसको एंजॉय कर रहा है, वो कभी भी नोट करेगा कि लाइटनिंग तो बड़ी जल्दी दिख जाती है और क्लाउड की थंडर बाद में सुनती है। कभी भी आप ऐसे खड़े होना रेनी सीजन में, आपको लाइटनिंग दिखेगी, होने की लाइटनिंग के देर के बाद
काफी समय देर के बाद गड़गड़ गड़गड़ की आवाज सुनती है, थंडर साउंड सुनते हैं। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि लाइट ने तो बहुत ज्यादा स्पीड से आना है और साउंड ने बहुत स्लो स्पीड से आना है। कंपैरिजन देखो भाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, लाख, करोड़, 3 करोड़, 30 करोड़, फिर से देख लो, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर। कोई बच्चा बोलता है सर मेरे को तो 1 मीटर ही नहीं पता कितना होता है। ये ध्यान से सुनो, ये कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है ना, ये कीबोर्ड है, ये लगभग आधा मीटर है, आधा मीटर। इसका डबल कर दो, 1 मीटर बनेगा। तो 1 मीटर इतना, और 1 सेकंड के अंदर अंदर 346 मीटर कवर कर देती है साउंड। दूसरी बात, समझ आ गया बेटे? यस या नो? यस या नो क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। व्हाई द लाइटनिंग इज लिसनड फर्स्ट एंड क्लाउड थंडर साउंड लेटर? कैन यू टेल इट? जो बच्चा इसका आंसर लिख पाएगा, रेज योर राइट हैंड। जो बच्चा इसका आंसर, बेटे जो बच्चा आंसर, पहले मेरे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बाद में, मैंने भी तो चेक करना है मेरे बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, नाउ योर क्वेश्चन। एक बच्चा पूछ रहा है, एक बच्चा कुछ पूछना चाहता है मेरे से। बेटे, सर हाँ बेटे बोलो। बोल कर सर, थाना वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की वेलोसिटी ये है। सर ये 346 मीटर वाला सर, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग सर, प्लीज रिपीट करना। ओके ओके, एक बच्चे को ना छोटा सा ये पॉइंट। So this is at room temperature. हाँ, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये साइंटिस्टों ने स्टैंडर्ड बना दिया कि जब भी रूम टेम्परेचर की बात होगी तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको एयर लेनी है। ये पक्का फिक्स है। और उसके अंदर साउंड की कितनी वेलोसिटी, ध्यान से सुनो। 1 मीटर इतना, 2 मीटर हो गया इतना, 3 मीटर हो गया इतना, राइट? और लगभग नहीं, पक्का 346 मीटर, 346 मीटर साउंड कवर कर देती हैं 1 सेकंड के अंदर। वो भी तब अगर हवा का अपना टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा ना हो और कम ना हो। बच्चा बोलता है सर अगर मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दूं हवा का टेम्परेचर तो क्या होएगा? तो अगर टेम्परेचर हवा का कम करोगे तो साउंड की वेलोसिटी कम हो जाती है। सर अगर ज्यादा कर दूं, अगर टेम्परेचर हवा का ज्यादा कर दोगे तो साउंड की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। कोई बच्चा कहता है सर ये जो आप बातें बता रहे हो इनका प्रैक्टिकल लाइफ का ऑब्जर्वेशन बता सकते हो? आप इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो? सुनो, अभी बताता हूं एग्जांपल। देखो एग्जांपल, एग्जांपल सुनो बेटा। एक बच्चा कह रहा है, Cancel. योर अटेंशन प्लीज। बच्चा कह रहा है सर आप एग्जांपल बता सकते हो? मैंने कहा यस। आप एक कांच का कंटेनर ले लो, ग्लास जार है, इसके अंदर आपने ये इलेक्ट्रिक बेल लगा दी है, इलेक्ट्रिक बेल। इसके अंदर फिलहाल एयर, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर आपको पता है एक कैप होती है स्टील की, उसको एक हैमर बार बार आके टकराता है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करा तो ये हैमर बार बार टकराता है, आवाज सुनाई देती है। यहां जो इंसान खड़ा होगा वो उसको आवाज सुनाई देगी। अब इस कांच के जार के अंदर हम सक्शन पंप लगाते हैं, सक्शन पंप, SUCTION, सक्शन पंप। जब सक्शन पंप लगाते हैं तो इसमें से हवा को खींच लेता है बोर,
हवा को खींचने से हवा हो गया बाहर, आउट। अंदर क्या हो गया? वैक्यूम। अब इसके बटन को ऑन करो, बिजली के बटन को, तो आपको देखोगे बड़े हैरान होगे कि ये हैमर इस बेल को बार बार हिट करता है, हैमर हैमर लेकिन इस इंसान को कुछ भी आवाज सुनाई नहीं देती, नो साउंड। क्यों? जहां से साउंड पैदा होनी है वहां से लेकर यहां पर यहां अंदर क्या हो गया? वैक्यूम। और टीचर ने क्या बोला? साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम बिकॉज इट इज ए मैकेनिकल वेव। तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि आवाज पैदा तो कंपन करती हुई चीज से होती है, लेकिन इंसान को तभी सुनाई देगी अगर इंसान के कान से लेकर साउंड के सोर्स तक टोटल में मीडियम प्रेजेंट हो। मीडियम। अगर वैक्यूम होगा तो नहीं सुनाई देगी। एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा कहता है, सर आप मेरे को बता सकते हो साउंड की वेलोसिटी एयर में ज्यादा होती है कि साउंड की वेलोसिटी सर पानी में ज्यादा होती है? हाँ बोलो बेटे। और साउंड की वेलोसिटी आयरन में ज्यादा होती है, किस में ज्यादा होती है? देखो टीचर ने एक गैस ले लिया। सर मोस्ट इन आयरन। व्हाट डू यू वांट टू आस्क? व्हाट इज योर क्वेश्चन? One student is standing जो साउंड in the वेरी सर what is your question? जो साउंड की वेलोसिटी है सर वो टेम्परेचर के इंक्रीज के बैठो साथ बढ़ती है और टेम्परेचर के डिक्रीज के साथ घटती क्यों है? इसका बैठो बैठो बैठो। एक बच्चे ने बोला सर अभी अभी आपने बताया हवा के टेम्परेचर के बढ़ने से साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो आप इसका वाई बता सकते हो? तो मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया, अभी बताता हूं इसका बाद में आंसर। पहले ऊपर चलते हैं, जो शुरू करा हो। देखो बेटा, बच्चे ने पूछा ये ज्यादा होती है कि ये ज्यादा होती है कि ये ज्यादा होती है? एक बच्चा कहता सर सारी बराबर होंगी क्योंकि है तो साउंड की वेलोसिटी हुई ना। रॉन्ग, ये अलग अलग होती हैं। सबसे ज्यादा होती है लोहे में, उससे कम होती है पानी में, और सबसे कम होती है हवा में। अब यहां से कंक्लूजन हो गया कि साउंड की वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। कोई बच्चा कहता है सर हम नहीं मानते। मैं उसको बोला बेटे मानना तो छोड़ो, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, आपको मानना पड़ेगा। सर कैसे? पहले मैं उस बच्चे को बता दिया कि मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे दूं कि साउंड की वेलोसिटी 6000 मीटर पर सेकंड होती है लोहे में। अगर एग्जैक्ट बोलूं तो 5985 कुछ ऐसे, थोड़ा सा कम होती है 6000 अप्रोक्सीमेटली। इसके अंदर तो हम कर ही चुके हैं 346 मीटर एट रूम टेम्परेचर। अब योर अटेंशन, सर आपके पास आपने बोल दिया हमने मान लिया, लेकिन प्रूफ क्या है कि ये वाकई डिफरेंट होती है? मैंने कहा लो आ जाओ, आप अपने एक दोस्त के साथ रेलवे लाइन पे चले जाओ, रेलवे ट्रैक्स पे ऊपर। ओके सर, फिर क्या करेंगे? फिर मैं बोलूंगा अपने दोस्त को बोलो कि वो इस रेलवे ट्रैक के ऊपर जोर से हथौड़ा मारे, वो भी तब जब आप उसको बोलोगे। हैमर को रेलवे के लोहे के ऊपर आपने हिट करना है हैमर से। ओके, वो भी तब जब आप बोलो। और आप जाओगे कहां पर? आप अपने दोस्त से 1 किलोमीटर दूर खड़े हो गए, मान लो, कम भी हो सकता है, 500 मीटर भी हो सकता है। तो ये आप हो, जैसे ही आपने अपना हाथ ऊपर उठाया, आपके दोस्त ने देखा कि आपने इशारा कर दिया, वो रेलवे लाइन पे जोर से हथौड़ा मारेगा। कितनी बार मारेगा? एक बार। हिट्स लाइन ट्रैक ओनली वंस, एक बार। तो जब एक बार हिट करा तो आपके कानों को
वो हिट करने की आवाज कितनी बार सुनाई देनी चाहिए? बच्चा कहता है सर एक बार हिट करा तो एक ही बार सुनेगी। शुड लिसन हिटिंग साउंड ओनली वंस, ओनली वंस। बच्चे ने ये जवाब दिया, जैसे क्योंकि एक ही बार हिट करा। जैसे ही बच्चे ने ये जवाब दिया उसका टीचर बोलता है रॉन्ग। एक बार हिट करने से के बावजूद भी आपको यह आवाज 2 बार सुनाई देगी। यू विल लिसन ट्वाइस, ट्वाइस, 2 बार। सर वो कैसे? बच्चा पूछता है सर वो कैसे? तो टीचर बोलो देखो, जैसे ही आपके दोस्त ने लोहे को हिट करा तो लोहे की रेलवे लाइन के थ्रू साउंड गई। कितनी वेलोसिटी से? 6000 मीटर, वेरी हाई। और आपके पैर कहां से टच करे हुए हैं? रेलवे लाइन से। तो रेलवे लाइन से होती हुई आपकी बॉडी से होती हुई आपके कानों तक पहुंच जाएगी। इतनी हाई स्पीड से आपको सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही हिट करा तो एयर भी तो है मीडियम, जहां हिट करा वहां से लेकर आपके कानों तक यहां पर हवा भी तो है, तो आवाज हवा में भी जाएगी। जब हवा में से जाएगी आवाज एयर के थ्रू जाएगी, ना कि लोहे के थ्रू, एयर के थ्रू जाएगी, तो वेलोसिटी बहुत कम है। तो हवा के थ्रू जो वेलोसिटी जाएगी साउंड की वो बहुत कम है, देर से पहुंचेगी। जो लोहे के थ्रू साउंड जाएगी वो तो इससे देखो लगभग 18-19 गुना ज्यादा है, वो बड़ी जल्दी पहुंच जाएगी। इसका मतलब जब आपका दोस्त रेलवे लाइन को एक ही बार हैमर से हिट करेगा, आपके कानों को 2 बार आवाज सुनाई देगी। और आप ये करके भी देख सकते हो घरों में। ये कोई स्कूल में कैसे कर सकते हो? मान लो एक टूटी की लाइन है, टूटी जो पाइप होती है ना टूटियों की, वहां पर आप अपना कान जोड़ लेना, अपने दोस्त को बोलो दूर चला जाए इसको हिट कर। जो हिट करेगा टूटी से आवाज अलग सुनाई देगी लोहे की पाइप से बड़ी जल्दी, लेकिन एक हवा में से वो एक बार हिट करेगा 2 बार सुनेगा आपको। तो यहां से गारंटेड तौर पर प्रूव हो गया कि साउंड की वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। वैसे सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसियस मीडियम में और भी कम होती है। अब मैं एक आज की आखिरी बात करूंगा। मेरे को एक बच्चे ने बोला सर साउंड की वेलोसिटी हवा के टेम्परेचर के बढ़ने से कैसे बढ़ जाती है? सुनो बेटे, ध्यान से सुनना। आपको साउंड की वेलोसिटी का फार्मूला अगर बता दूं तो वो ये होता है, एयर के अंदर। बच्चा कह रहा है सर वेट वेट वेट, हमें तो ये पता ही नहीं है क्या क्या लिख दिया आपने, और इसमें ये तो हम पहली बार देख रहे हैं, ये क्या चीज लिख दी आपने? तो बच्चा टीचर कहता है आपको इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। लेकिन इसमें ये याद होना चाहिए, पी का मतलब प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ एयर। डी का मतलब डेंसिटी ऑफ एयर। और ये एक सिंबल है ग्रीक लेटर गामा बोलते हैं, इसको छोड़ दो। 2 चीजें आपको बता दी। एक और इक्वेशन होती है जो सारी गैसेस फॉलो करती है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी। टी मैंने टेम्परेचर, आर को छोड़ दो, अभी छोटी क्लास है। इस पी को यहां रखो। जैसे इस पी को यहां पर रखा तो साउंड का फार्मूला क्या बन जाएगा? पी को निकालो, पी कितना निकलेगा? आर टी अपॉन वॉल्यूम। बच्चे ने यहां रखा तो गामा वैसे ही लगा रह गया, डेंसिटी वैसी लगी रहेगी, और प्रेशर की जगह ये लिख दिया आर टी अपॉन वॉल्यूम अंडर रूट। और यहां पर टीचर कहेगा इस फार्मूले में गौर से देखो कि साउंड की जो वेलोसिटी है एयर के अंदर, उसमें साउंड न्यूमरेटर में है और टेम्परेचर भी तो न्यूमरेटर में ही है। इसका मतलब साउंड की वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर। जितना हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये फार्मूला कहता है उतनी साउंड की वेलोसिटी बढ़ेगी। गॉट इट? यहां से ये थोड़ा सा हायर क्लास का बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया।
इसलिए मेरे को फार्मूला बताना पड़ा। तो याद रखना, साउंड की वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर इधर वाला पैरामीटर बढ़ेगा तो इधर वाला भी बढ़ेगा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना जितना टेम्परेचर ज्यादा होएगा उतना साउंड की वेलोसिटी बढ़ेगी। एक बच्चा कहता है सर इसका मतलब है मैं पानी को गर्म कर दूं तो साउंड की वेलोसिटी पानी में ज्यादा हो सर जाएगी। बिल्कुल। तो गर्म लोहे में साउंड की वेलोसिटी ठंडे लोहे के मुकाबले ज्यादा होगी। मैं कहूंगा होएगी तो ज्यादा, लेकिन हम तो मेनली एयर के बारे में ये फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। एयर में तो ये पक्का रूल है। सर हवा को गर्म कर दूं तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, आपके पास प्रूफ क्या है? ये तो आपने फार्मूले से बता दिया। कोई प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्वेशन बताओगे? मैंने कहा अभी लो। ये सड़क है, यहां पर एक बच्चा जून के महीने में गर्मियों में एक पोल के ऊपर हथौड़े मार रहा है, लोहे के पोल के ऊपर हथौड़े मार रहा है बार बार। यहां पर आपका स्कूल है, स्कूल की विंडो में आप बैठे हो, आपको गर्मियों में उसकी आवाज सुनाई देगी। वही बंदा अगर जून में ना होकर दिसंबर में हो, जब टेम्परेचर लो होता है, ठंड हो गया, आजकल का महीना, वही बच्चा इस लोहे के पोल को जब हथौड़े मारेगा, वो उतनी ऊंची नहीं सुनाई देगी, या सुनाई नहीं देगी, या उतनी ऊंची नहीं सुनाई देगी जितनी गर्मियों में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में जून के महीने में टेम्परेचर हवा का बढ़ गया तो साउंड की वेलोसिटी तेज हो जाती है। तेज हो जाती है तो सराउंडिंग के मटेरियल को, साउंड को पकड़ने का टाइम कम लगता है, एब्जॉर्ब करने का टाइम कम लगता है। जो चीज तेजी से निकल जाएगी उसको सराउंडिंग मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता अच्छे से, तो वो ऊंची आवाज सुनाई देगी आपको। वही आवाज सर्दियों में आपको बहुत डिम सुनाई देगी, जबकि बंदा सड़क के पार लोहे के पोल को उतने ही जोर से हिट कर रहा है, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर लो है। इसलिए टीचर ने एग्जाम्पल से भी बताया कि यस, टेम्परेचर के बढ़ने से साउंड की वेलोसिटी हवा में बढ़ती होती है। एनी क्वेश्चन? फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। एनी क्वेश्चन? सर एक्सक्यूज मी सर, यस बेटे बोलो। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। मैम सर हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर पेट का दर्द रोटी के बाद, अलेजेंड्रो जो को आपने हमें बताया था रोटी के बाद पेट का दर्द हमारी क्लास से। कोई बात नहीं। अलेजेंड्रो का बच्चा बोलता है सर टेम्परेचर के बढ़ने से साउंड की वेलोसिटी बढ़ी, हमें ये इतना सा सेक्शन हमें छूट गया। बेटे अगर इतना इतना सा सेक्शन आपका छूट भी गया तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस से बाहर जाके बताए, भूल जाओ उसको, कोई बात नहीं। बाद वाला सर, भी सुना तो ठीक है। बेस के बाद वाला छोटा है। ये तो मैंने किसी बच्चे ने पूछ लिया था क्लास में, टेम्परेचर के बढ़ने से साउंड की वेलोसिटी कैसे बढ़ती है, उसके सवाल का जवाब दिया था। ओके बेटे, क्लास को वाइंड अप कर नेक्स्ट टाइम। आज का लेक्चर समझ आया? एक्सक्यूज मी सर, अगली बार मिलेंगे बेटे अपने सभी बच्चे। सर ये लास्ट नहीं समझ आया जो ये वाला। जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो मेरे से, जितने मर्जी, सारों के जवाब दूंगा, लेकिन आप लिख के लाओ। सर जो ये वाला नहीं समझ आया, पीवी इक्वल टू आर टी एंड दैट अंडर रूट वाला। नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। सर एक्सक्यूज मी सर, और काहे नहीं करे खराब हो जाएगा हमरा। सर यस बेटे, यस मैं भी मैं बुला लो कुत्ता पाड़ो। यस बेटे। सर I am not understanding that you have written on the हाँ कोई बात whiteboard that PV equal to R. This whole page I don't understand. again next time, okay, don't worry, I will explain next. Okay sir. Okay sir. आज इंडस्ट्री